Yes. है ना बच्चों? So that is what we are clear of. We know what is a D and F block element now. We know what are we talking about. We know what electronic configurations we're talking about. Now we are heading on towards the entrance questions, whether CET, whether JE, whether NEET. We need to have our base strong. Okay, beta? अभी हमको बोला गया था कि आपको एलिमेंट्स बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, बट द कंपटीशन इज गेटिंग टफ. देयर आर क्वेश्चंस व्हिच दे कैन डायरेक्टली आस्क बाय द सिंबल और बाय और द नेम ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, तो लेट अस ट्राई, एटलीस्ट वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर द फर्स्ट लेटर. मतलब एटलीस्ट अगर आसपास कुछ दिखा उसके तो याद तो आ जाए. So I did a little research. Some I made on my own. Some I got it from the internet, and I've made this thing for you. If it helps, good. If it doesn't help, no harm. Why? Because it totally depends on you whether you want to remember this or not. I would recommend आप remember करो, because there are many questions which will be having the element and element का name. So मतलब एक थोड़ा सा chance देके देखो ना उसको, right? So I have written the 3D series, the 4D series, 5D series and the 6D series. बेटा 3D, 4D, 5D, 6D ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स. डी ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में लाया करते हैं? फ्रॉम द थर्ड ग्रुप टू द 12th group. टोटल ग्रुप्स कितने बेटा? 10. ठीक है बेटा? Yes. ये स्कैंडियम से जिंक कहां से कितने नंबर तक है बेटा? 21 to 30. 21 to 30. to 30. What about ytterbium to cadmium? 31 to 40. Boss, 31 कैसा आएगा? उसके आगे तीन लोग एलिमेंट्स है ना, कुछ भी. Yes. ये ytterbium to cadmium कितने? 39 से 10 plus 39 करो. to 48. 39 to 48. What about lanthanum to mercury? 57 to 80. 57 to 80. 57 to 80. 80. 80. And what about the 60 series, actinium to canadium? 89. 89 89 to 112. 112. 112. लैंथेनॉइड्स जो अपना होता है वो कहां से कहां तक रहते हैं? लुटेटियम, फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम. Cerium to lutetium. बताओ. 57 to 71. 57 to 71. 57 to 71. 21. एक्टिनॉइड्स कितने से कितने तक रहते हैं? Thorium to lauryl. 89 to 89 to to 103. 100 89 to 103. 89 to 103. ठीक है. अब अगर ये याद रखना पड़ेगा, अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. Now if I look at the first 3D series, SC, TI, V, CR, MN, FE, को, नी, उ, जन. ठीक है. तो Sachin Tendulkar, very crazy man because he is the god of cricket. ठीक है. SC से Sachin Tendulkar, very crazy man. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. आगे वाला आयरन के लिए FE, फ्री कोचिंग टू Nitin's cousin. Free coaching to Nitin's cousin. See, it might sound stupid, but what I'm saying is, अगर याद रह जाता है तो कुछ नुकसान थोड़ी होता है बेटा अपना, right? So try to remember it in this way, or if you have your own way, you can do that. There were many options. ये सिर्फ एक ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिले थे, but I thought this was a better sensible thing to remember. So Sachin Tendulkar, very crazy man, free coaching to Nitin's cousin. So Sachin Tendulkar is a very crazy man because he gives free coaching to Nitin's cousin. Arey, he should ask for crores of rupees because he's Sachin Tendulkar, right, beta? So Sachin Tendulkar is a very crazy man because he gives free coaching to Nitin's cousin. अगर ये स्टेटमेंट याद रह गया तो हम लोग 3D सीरीज को एक उनके स्टार्टिंग लेटर से याद कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये वाला आएगा, वहां पे ये वाला आएगा. Is it clear, guys? Yes. 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 Look at the 4D series. 4D series. यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर. This is a little शायराना, a bit stupid. ठीक है. यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर. अभी ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके फर्स्ट लेटर पे हमको ध्यान देना है.
इनका जो फर्स्ट लेटर है, दिस इज कॉल्ड एज निमोनिक्स बेटा. व्हेन आई से निमोनिक्स, हिंदी की जो साउंड है, अभी निमोनिक्स इज समथिंग व्हिच यू कैन फील व्हेन यू कीप योर हैंड ऑन योर माउथ, ऑन योर लिप्स. So when I say A, my lips are going this way and I'm producing sound. When I say O, my lips are coming together and it's becoming a circle. When I say N, my tongue is touching the upper क्या बोलते jaw. ठीक है? So this is mnemonics. तो अगर मैंने कहा यारी तो मुझे Y याद रखना है, ये पहला वाला लिटरबियम का. ठीक है? फिर जरा से मुझे Z और R याद रखना है. निभाना से मुझे अगर N और B इसमें से निकालना है तो ऑब्वियसली NI तो नहीं होगा बिकॉज NI निकल है तो सेकंड वाला NB. सो आई होप यू कैन एटलीस्ट रिलेट दैट मच कि अगर आपको दिया तो थोड़ा बहुत तो आप उसको याद रख सकते हैं बच्चों. Yes. 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 5D सीरीज देखना. 5D सीरीज का यही मुझे मिला था तो मैं और दूसरा ऑप्शन ही नहीं मिला, सब जो ला हफ्ता कर रहे हैं. ठीक है? Yes. ला हफ्ता ताऊ वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हंसेंगे. मैंने इसके लिए कोई दूसरा वर्ड सोचा था बट वो थोड़ा सा नास्टी हो जाता है इसलिए मैंने हंसेंगे लिख दिया. ठीक है? आई नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग. सो ला हफ्ता ताऊ वरना रमेश की जगह मैंने रेमेश लिखा है. ठीक है? वरना रेमेश और इंदर पीटेंगे और हंसेंगे. ये बेटा is this it will this be a little helpful? I've taken pains to write it down. Yes. Are you guys noting this? Yes. Yes. Nobody is noting this. Very good. ठीक है, मैं तो मेरी मेहनत पानी. Fine. 6D सीरीज देखो बेटा. एक्टिनियम से लेके ये लास्ट वाला कौन सा है? Mercury. भाई ये इधर कौन सा 5D ना सर? अरे भाई 60 बोल रहा हूँ. हाँ. ठीक है? सो अच्छा, R.D. शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज वाले कौन? रेंज के कौन? R.D. शर्मा सबको पता है? Yes. बेटा वेरी फेमस. Yes or no? Are you referring R.D. शर्मा? कोई Yes. R.D. शर्मा को रेफर करता है क्या? I'm sure शुभम करता होगा. शुभम R.D. शर्मा पढ़ा है बेटा? आर.डी. शर्मा ने नहीं पढ़ा. कोई बात नहीं. You should 9th-10th में पढ़ा है. 9th-10th में पढ़ा है बेटा. गुड. तो अच्छा, R.D. शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज के कौन? ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 6D सीरीज. मेन मतलब मेरे को ये पहला 2 और 3 कर लोगे ना काफी है, इसमें से ज्यादा मगजमारी नहीं. बट स्टिल फॉरगेट. लैंथेनॉइड्स को वी हैव डिवाइडेड इनटू क्या बोलते हैं 3 पार्ट्स. लैंथेनॉइड्स के जो 14 एलिमेंट्स है 15 लैंथेनम को कंसीडर करके 15 हो जाते हैं. तो अपन उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अभी देखो बेटा, ला से लेके SM तक. ठीक है? लास्ट सेंचुरी प्रेजेंटेड न्यू डेमोक्रेटिक PM ऑन सोशल मीडिया. लास्ट सेंचुरी प्रेजेंटेड न्यू डेमोक्रेटिक PM प्राइम मिनिस्टर ऑन सोशल मीडिया. SM ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज इसमें एक्चुअल सब ये दिखा रहा है. उसके जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं देखो, ला, SC, PR, ND, PM, SM सोशल मीडिया. बेटा लास्ट सेंचुरी प्रेजेंटेड न्यू डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑन सोशल मीडिया. ये हो गए ये एलिमेंट्स. इसके बाद EU से लेके HO. EU आप लोग को याद रहेगा बिकॉज यू आर फ्रॉम कल्याण. ठीक है बेटा? सो यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन डर्टी होटल्स. EU से यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइडेड से GD, टू बैन से लेके TB, डर्टी से DY, होटल से HO. यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन डर्टी होटल्स. Last century presented new democratic prime minister on social media. European government decided to ban dirty hotels. ठीक है? उसके बाद आता है यही है ना? नहीं, ये वाला. हाँ. फिर इसके बाद ER वाला सीरीज आता है. Easy to make yellow building luxurious. Easy से ER, to make से TM, yellow building से YB, luxurious से LU. Simple. Easy to make yellow building luxurious. ऐसा इसको याद रखेंगे अगर 3 पार्ट्स में तो अपना लैंथेनॉइड सीरीज पूरा याद हो जाता है इस तरीके से. नाउ लेट अस कम टू एक्टिनॉइड्स. एक्टिनॉइड्स में ये वाला मैंने बनाया है, मतलब देयर वाज समथिंग एल्स बट आई मॉडिफाइड इट फॉर यू गाइस. लेट्स सी इफ इट हेल्प्स और नॉट. सो एक्टिनॉइड से शुरू किया है. अकॉर्डिंग टू थॉर प्लैनेट्स यूरेनियम, नेपट्यून, प्लूटो. अकॉर्डिंग टू थॉर प्लैनेट्स यूरेनियम, नेपट्यून, प्लूटो. ये इजी है, ये बहुत इजी है समझने के लिए. ठीक है? क्योंकि एक्चुअली एलिमेंट्स का नाम ही वो प्लैनेट्स के ऊपर है. सो अकॉर्डिंग टू थॉर प्लैनेट्स यूरेनियम, नेपट्यून, प्लूटो. इजी है ना ये?
Yes. 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 उसके बाद वाला अमेरिका क्योर्ड बर्कली इन कैलिफोर्निया। अमेरिका क्योर्ड बर्कली इन कैलिफोर्निया। अमेरिका क्योर्ड बर्कली इन कैलिफोर्निया। और उसके लास्ट वाला भी इजी है, आइंस्टाइन फर्मी मेंडलीव वर नोबल लॉरेट्स। नोबल लॉरेट्स पता है नोबल किसको बोलते हैं? नोबल जिनको प्राइज जिनको नोबल प्राइज Nobel मिलता है। Prize. इसको हाँ, मिलता जिनको है। नोबेल प्राइज मिलता है। तो लास्ट वाला जो है आइंस्टाइन फर्मी मेंडलीव वर नोबल लॉरेट्स। सिंपल बेटा, विल दिस बी हेल्पफुल? Yes, sir. Yes. 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 कैन आई Yes, इरेज sir. दिस? No. No, wait, sir. No. No, sir. No. No. इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग इट आपको अपने आप याद हो जाएगा बेटा। दिस इज हेल्पफुल, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेंस एडवांस। कहीं पे भी आप एटलीस्ट एलिमेंट पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने का सिर्फ यही तरीका है बेटा। अगर आप बोलो कि नहीं मैं एलिमेंट्स को याद रखूंगा एंड ऑल, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आई कैन नॉट डू दैट, यू शुड डू दिस। हो जाए तो मेरे को बताना बेटा। Sharon, is this helpful? Yes, sir. Yes, sir. आशुतोष, गिरीश, पाटिल, अजिंक्य पाटिल। सर वो यूरोपियम के बाजू में क्या लिखा है? यूरोपियम किधर बेटा? हाँ, लैंथेनियम, लैंथेनॉइड्स में। यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन डर्टी होटल्स। European government decided is one word, to ban is one word, dirty hotels. Hey, तेजस, Yes, सब yes. dirty hotels Blur- बैन करने का यूरोपियन गवर्नमेंट को। Yes, Because sir. वहाँ पे खाना अच्छा नहीं बनाते। तुम गए थे बेटा यूरोप? No. अच्छा। Europe is a very beautiful country. What is wrong in my sentence? Sir, Europe में बहुत continent. सारे कंट्रीज आते हैं। Very good. Europe is a कॉन्टिनेंट continent. है वो। यूरोप के Continent. कंट्रीज बहुत सुंदर होते हैं। Sir, नहीं होते. ये देखो, क्यों नहीं होते? India. सब नहीं, but almost all. I love my India. अरे भाई, तेरे को इंडिया से प्यार करने कोई मना नहीं कर रहा, पर दूसरा कोई सुंदर है तो उसको तो अप्रिशिएट कर। नाउ यू लव योर वाइफ, बट विल यू नॉट अप्रिशिएट दीपिका पादुकोण? Japan. Sir. Japan. सर वो लैंथेनियम के नीचे क्या लिखा है? देख कितना शर्मा गया है, शादी की बात सुन के लड़का शर्मा गया। सर वो क्या बेटा? लैंथेनियम के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे? लैंथेनियम, लैंथेनियम। किधर है? ये वाला? हाँ, उसके नीचे। ये वाला ना, हाँ, इजी टू हाँ, मेक हाँ। येलो बिल्डिंग लग्जूरियस। इजी टू मेक येलो बिल्डिंग लग्जूरियस। Easy to make yellow building luxurious. प्रफुल्ल, Sir, प्रफुल्ल, X मतलब क्या होता है? X मतलब the person who should not come back to our life. No, sir, वो वाला नहीं. मैं तो स्ट्रक्चर में बोल. कहाँ पे Sir, X है? इधर सर उनका वो दिया है कि खुद का स्ट्रक्चर बनाता है वो। क्या बोल रहा है? सर, ये बोर्ड सर पे दिया है कुछ है? स्कैंडियम का HCP. सर नहीं, हाँ, स्कैंडियम का HCP है, टाइटेनियम का भी HCP है और जिंक का X और HCP है. X मतलब क्या है? वो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का वो सब दिया है। एक्स 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 करके लिख के दिया है और नीचे एक्स कहाँ पे मतलब दिया है ये लिख के? एनसीईआरटी में लिख के दिया है। मेरे को भेजना अपना, क्या नाम है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम लोग ना अधूरे सेंटेंसेस बोलते हो, तुम लोग आगे पीछे का बताते नहीं हो मेरे को। तुम शुभम मेरे को इसका फोटो भेज देना, ठीक है? मैं तुमको बता दूंगा। अभी ये लिख Yes, लिया sir. गाइस, कैन आई रब दिस? yes. No, सर नहीं. 40 सीरीज में क्या लिखा? Sir, wait. 4D सीरीज तक ही है अभी तक। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। ये केदार को बहुत अच्छा लगेगा। केदार लव्स हिज फ्रेंड्स, है ना केदार? यस। बेटा दोस्तों से प्यार मत करो, किताबों और करियर से प्यार करो। And take it from me, I'm an experienced person. Like you should love your friends, but not over an extent. Because at the day's end, only your family is going to be with you. You will not understand this now, but you will soon understand it when you are mature. Because I didn't understand it either when I was a kid. चलें आगे बढ़े।
No. H. सर वो क्यूरियम के लिए क्या है? क्या बेटा? क्यूरियम के लिए अमेरिका वाला वो लास्ट अमेरिका क्योर्ड बर्कली इन कैलिफोर्निया। अमेरिका क्योर्ड बर्कली कैलिफोर्निया। बर्कली बीमार हुआ तो उसको कैलिफोर्निया में ठीक किया। मैंने कुछ एलिमेंट्स बोर्ड पे सर्कल किए हुए हैं। अगर शुभम तुमको याद होगा, तुमको कुछ समझा नहीं था जो मैंने बोला था मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, याद आ रहा है? यस यस। ये लिख लो। तो ग्राफ में वो वाला ना, कौन सा मेल्टिंग पॉइंट वाला? वो वाला टॉपिक पर। सर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है क्या ये? नहीं, शुभम को डाउट था ना इसमें। मेल्टिंग पॉइंट वाला क्या? कुछ भी। कौन सा? चलो लिख लो, बाद में बताता हूँ, लिख लो। सर उधर Sir. एक्स मतलब दिया टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं? टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। सर उसके अंदर टिपिकल ऐसे भी मेटालिक है स्ट्रक्चर। कि वो- टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर मतलब वही अपना मेटालिक बॉन्ड के साथ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर जो रहता है। यस यस, टिपिकल सर मेटल स्ट्रक्चर। हाँ उसके बोलो अंदर बेटा। ऐसे भी दिया है को 60 सीरीज इनकम्प्लीट है। क्यों? हाँ ऐसा दिया है। हाँ 60 इनकम्प्लीट है series क्योंकि not आगे और एलिमेंट डिस्कवर होंगे ना, उसमें पूरे गए नहीं है अभी तक। क्यों अभी तक? अच्छा, अरे हाँ वो होता है ना, पीरियड टेबल यस पढ़ते यस हो सर, ना, यस फर्स्ट सर, यस स्मॉल स्मॉल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड, इनकम्प्लीट पीरियड, वो वाला सीन है। सर, यस सर। यारी मेरी हो गया। यस यस सर। सर ला हफ्ता ताऊ वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हंसेंगे। अच्छा, आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज के कौन? न्यू डेमोक्रेटिक पीएम ऑन सोशल मीडिया। यूरोप के, मेरे को ये सबसे बेस्ट ना लैंथरनॉट्स का लगा, इतना इजीली याद हो गया ना सारा, और प्लस एकदम डिप्टो है, वो वर्ड्स एक्चुअली उसमें से मिल रहे हैं मेरे को, है ना? यस 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 ये तुम लोग को ये वाला कैसे लगा? ये वाला मेरा पर्सनल है, मैंने खुद ने बनाया, ट्रस्ट मी। ये कुछ और था बुक में इंटरनेट पे, पर मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया सर वो अकॉर्डिंग नीचे अच्छा करना, आइंस्टाइन। नेपट्टून प्लूटो। आइंस्टाइन वाला अच्छा लगा। हाँ ये वाला भी मैंने बनाया। आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव वर नोबल लॉरेट्स। सॉरी। अमेरिका क्योर्ड बर्कली इन कैलिफोर्निया। पूरा 14 एलिमेंट्स याद हो गए भाई, 14 क्या 15, एक एक्स्ट्रा। यस एक्टिनॉइड के साथ। रब कर दूं? यस No. यस। यस सर। यस सर चलो बच्चों, इसमें पूरा लेक्चर मत निकाल दो। यस एटलीस्ट ऊपर का तो हो गया होगा ना? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग टू नितिन's cousin. Which is the noble gas for 3D series? Xenon. H. Second series भी हो गया ना? यस Is it xenon? Are you sure? 3D के लिए? आर्गन आर्गन आएगा ना? आर्गन आएगा सर। आर्गन कि कल मैंने इसको इससे साफ किया था, वो पॉली क्या? प्रफुल्ल, मिस्टर सिंह, एक्टिंग ये कर आप कर दूं 6D सीरीज? यस सर यस सर। यस सर यस सर फोटो लिया है किसी ने इसका? यस सर। या अगर फोटो लिया तो मेरे को दे देना, स्क्रीनशॉट वगैरह लिया तो मेरे को भेज देना, मेरे को काम आएगा आगे के लिए। यस सर भेज देता हूँ। ये भी रब कर दूं, लैंथेनॉइड्स रब कर दूं शरण? No, no.
लैंथेनॉइड्स बोल रहा हूँ, एक्टिनॉइड्स रहने देता हूँ। सर वो लिख- अच्छा, ठीक है। अरे ये यस सर, हॉफनियम के पहले ये वोल्फ्रम और ये क्या है पता नहीं, ये इसके पहले रीनियम क्या रीनियम है यहाँ पे? रीनियम में वो, और टंगस्टन है, टैंटलम, हाँ, हैफ्नियम। ये रीनियम है, टंगस्टन है, वोल्फ्रम, टंगस्टन को वोल्फ्रम बोलते हैं। ये टैक्टम है, और ठीक ये है, हैफ्नियम। हॉफनियम है वो। हाँ, Hafnium. ये क्या है बेटा? लैंथेनम। लैंथेनियम, लैंथेनम, लैंथेनम, लैंथेनियम नहीं है बेटा, लैंथेनम बोलते लैंथेनम, हैं। लैंथेनम के साथ और कौन रखा है? एक्टिनम, 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 लैंथेनम के साथ, लैंथेनम के नीचे नहीं, लैंथेनम के साथ कौन लैंथेनॉइड्स रखा है? रखता है, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स, 14 यस, लैंथेनॉइड्स। यस, लैंथेनम के साथ 14 लैंथेनॉइड्स है। यस, यस 14 लैंथेनॉइड्स के बाद हॉफनियम का ये आता है, यस, यस फिर डब्ल्यू, फिर री। यस सर, यस ये सर। 14 लैंथेनॉइड्स में क्या हो रहा है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, तुम सब लोग को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझा था? यस, यस यस, ये सबके अंदर 4F14, 4F ना, 4F था 5F था क्या था? 4F, ठीक है। ये लैंथेनॉइड्स में 4F14 पूरा भरने के बाद तब किसमें जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल? इसके बाद 5D में जाएगा, इसमें जाएगा, D 5D में जाएगा, 5D, 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 यस, ठीक है। अच्छा, 4F14 पूरा होने के बाद, 4F14 पूरा होने के साथ जो होता है 5D 1 से 10, है ना? 10, यस, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा? हॉफनियम, हॉफनियम, डब्ल्यू, री, है ना बेटा? 5D सीरीज का, यस सर, तो ये जो एलिमेंट्स है इनके अंदर 4F14 पूरा भरा हुआ है। यस यस, यस 4F14 और 5D का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है? वेरी वीक, वेरी वीक, वेरी और वीक। अब इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ये एलिमेंट्स में तो दिखेगा ना? यस, सर नहीं ये समझा। एलिमेंट्स लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हुआ था, तो इसके बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं उनका साइज भी छोटा ही रहता है छोटा बिकॉज होता ऑफ है, दिस। अब Yes. इसका साइज छोटा है, सपोज इसका, इसके ऊपर वाले का, दिस इज डाउन द ग्रुप, दिस इज डाउन द ग्रुप, दिस इज फोर्थ ग्रुप, दिस इज फिफ्थ ग्रुप, दिस इज सिक्स्थ ग्रुप, दिस इज सेवेंथ ग्रुप। ये सब के अंदर कॉमन क्या है बेटा? लास्ट एक ही शेल में पीरियड सेम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, Yes. Last shell में same number of electrons is something which is common to all of them. यस सर, यस Group number indicates the total number of valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Yes or no? यस, अब बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये भाई का भी साइज छोटा ही रहेगा, तो जिरकोनियम और हॉफनियम के साइज में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर नहीं इसका एटॉमिक साइज 69 है तो इसका 70 हो जाता है, बट डाउन द ग्रुप इट शुड इंक्रीज ना। बट ये देखो Yes. कितना कम इंक्रीज हुआ है। अगर दिस इज 25, दिस इज 26, if this is 28, this is also 28. I'm just giving you random numbers, these are not the numbers actually. Yes. If this is 72, this is also 71. ऐसा रहता है बेटा, तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। Yes. Yes, Same. sir. अब इनका साइज सेम है, इनके पास लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, ये केमिकली सेम बिहेव करेंगे। Yes. Yes. That is why this pair, these pair of elements are called as chemical twins. They are called as Chemical twins. Chemical twins. they are called as chemical twins. क्या बोलते हैं उनको? Chemical twins. Chemical twins. शुभम, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि क्यों Yes. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज कम होने की वजह से इसका साइज सेम हो जाता है? Yes, sir. समझा. तेजस समझा? सारा नाम धीरे से गुजार बेटा अभी। यस गाइस समझ रहे हैं? पीयूष, Yes, sir. Yes, अक्षय, sir. अनुराग, अनिमेश, Yes, sir. निकिता, अंकिता, यस सर क्या वो लिखना है? प्राची, जिरहाफ, जिरहाफ,
Zr and HF, a pair of chemical twins. Zirhaf, Nobita, NB and TA, pair of chemical twins. Nobita Chemical पता है तुम लोग को? Yes. Yes. Nobita, ठीक है. अच्छा, molybdenum and tungsten, pair of chemical twins. गाय क्या बोलती है बेटा? मो. क्या बोलती है बेटा? भाई कह रहे बेकार हो, मैंने बोल दिया तुम बोल नहीं पा रहे हो. Yes. TCRE. Taclarion. TCRE. TCRE. Can we remember the pair? 4 ही पैर है केमिकल ट्विंस का. क्या हम इनके हिसाब से, अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं तो आप ये 3-4 वर्ड्स याद करके आप देख सकते हो कौन केमिकल ट्विन है और कौन नहीं है? Yes. Yes. 4 ही पैर है. जिरहाफ से ZrNHF, नोबिता से NBTA, मो से MOW एंड टक्लारियन से TCRE. सिंपल. सर बाद में नहीं वैलिड रहता ना ये केमिकल? नहीं बाद में वैलिड नहीं रहता. Can I rub this? सर लिखना है. लिख रहे हो बेटा? Yes sir. Yes. Yes. Animesh, is this helping you? Vinayak, is this helping you? Yes, sir. प्रचेत, Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. नो? Yes, sir. आ रहा है. अच्छा. प्रफुल्ल पाटिल, हर्ष निपाने, is this making your life easy बेटा? सर उसके आगे वाला वैलिड नहीं रहेगा ना? उसके आगे एलिमेंट. ये क्या बोल रहे हैं? सर उसके आगे वाले एलिमेंट्स को वैलिड नहीं रहेगा? उसके आगे वाला एलिमेंट्स का साइज बढ़ते जाता है तो उनका डिफरेंस कम होता है, उनका डिफरेंस भी बढ़ते जाता है, तो वो केमिकल ट्विंस की तरह बिहेव नहीं करते. These 4 are the very strong chemical twins. जिनके अंदर लास्ट सेल में भी सेम इलेक्ट्रॉन है, इनका साइज भी सिमिलर है, तो सिमिलर केमिस्ट्री दिखाते हैं. Yes. Yes. Yes, sir. Yes. बेटा लिख लिया क्या? मैंने ये मिटा देना है. Yes. 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 अच्छा. पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में कलर क्यों होता है? D block element. Unpaired electrons. Third electrons. सर लिगेंड्स प्रेजेंट. D2D transition. तो D2D ट्रांजिशन रहता है. सर लिगेंड्स प्रेजेंट है. उसमें लिगेंड. डी ब्लॉक, उसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसके अंदर. Ligand फिर भी color Geometry रहता है. लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन जाता है उधर. Ligand का yes. अरे भाई तुम लोग को याद है मैंने लिगेंड वगैरह कुछ बताया था? लिगेंड टू Yes, इलेक्ट्रॉन ligand, ट्रांसफर. yes. उसका रीजन वो है. शुभम किसने बताया ये? सर मैंने बताया था. मुझे पता था क्योंकि तुमने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने तुमको ये क्लैरिटी दी सबके सामने, बट सबको याद नहीं है. सब लोग ने डी ब्लॉक एलिमेंट 12th में लिखोगे तो शायद फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट एंट्रेंस में wrong. चलो, एवरीबॉडी हैज द पीडीएफ. सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताओ ना सर. बोल. वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनोमलस बिहेवियर का कौन सा एनोमलस भी? वो आपको भेजा था ना. लैंथनोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो इधर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आता है. नहीं समझा मैं. ये कब भेजा था? सर वो आपको एक बार भेजा था ना, वो लिंक भेजा था आपने. मैंने लिंक भेजा था तुमको. हाँ. क्वेश्चन बता दे. एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन. क्वेश्चन बता दे बेटा. सर मतलब वो सीरीज में जाके देखा ना तो क्रोमियम और कॉपर का 3D में एक्सेप्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए. हाँ तो जो नीचे गया ना तो उधर क्रोमियम के नीचे वाला वैसे नहीं दिखाता है, उसके पहले वाले में 6s1 भरा था और उसके नीचे वाला मतलब 5D में देखा ना तो वो पहले एलिमेंट्स में एक काम करोगे, ये एक बार रहता दोबारा भेज दोगे बेटा? मेरे को ऐसा नहीं समझे. दोबारा भेज दोगे एक बार? Yes, sir. बताओ ना सर ग्राफ. अपन कल सुबह डिस्कस कर लेंगे. जो भी ये चैप्टर के रिलेटेड जो भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डाउट्स आएंगे ना बच्चे, मुझे भेज दो. आई विल प्रिपेयर इट फॉर टुमारोज लेक्चर. ठीक है? Yes, sir. सर ग्राफ बताओ ना. ग्राफ
कौन सा ग्राफ? सर वो ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा कुछ था ना? सर ऐसा नहीं था, लैंथेनम और जो लैंथेनम सीरीज है और यूट्रिडियम जिरकोनियम उनका अरे सेम है। अभी तो बताया बेटा, वो उनका साइज क्यों सेम रहता है? अच्छा वो सेम है। वो सेम चीज तो था, सेम एक्सप्रेशन था बेटा। मैंने बोला था ना मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, ये मैंने अभी तो समझाया तुमको। ए शुभम, तुम सोया भी करो यार, तुम सोते नहीं हो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर गिब्स एनर्जी का बताने वाले थे ना? नहीं, मैं गिब्स एनर्जी का बताने वाला था, बट आई सॉ द क्वेश्चन, बाकी गिब्स एनर्जी नहीं है। मैं आपको गिब्स एनर्जी का ना एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तुम सेम चीज थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हो, बुक में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपने बहुत बार देखा होगा, डेल्टा जी वगैरह, ठीक है? ऑप्शन देखा था एब्जॉर्प्शन। डेल्टा जी के कंडीशंस वगैरह भी होते हैं, एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन सब जगह देखा होगा। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे भी आप ये कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ठीक है? अब देख बेटा, एक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, ठीक है? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी अपने उस पर ध्यान नहीं देते, इससे ऑब्वियसली पता चलता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट अभी के लिए ध्यान दो। एक रिएक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी समवेयर से अराउंड 100 किलो जूल्स। जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, ठीक है? A to B will give me C plus D. Activation energy is around 100 किलो जूल्स। ओके बेटा? अब उसका इंटरनल क्या बोलते हैं, मैंने कैटलिस्ट यूज किया, मैं उनका इंटरनल थर्मल एनर्जी है, उनका मूवमेंट है, वो सब एनर्जी भी दे विल यूज एज एक्टिवेशन एनर्जी ओनली, राइट? फॉर मूविंग, फॉर कोलाइडिंग एंड ऑल। कोलिजन थ्योरी। यस सर। ठीक है बेटा? Yes. तो वो जो एनर्जी उन्होंने यूज किया, इंटरनल वगैरह, सपोज दैट इज 20 किलो जूल्स, ठीक है? इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, 20 किलो जूल्स। अभी भी इसको एक्टिवेट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए बेटा? 80 अब ये 80 किलो जूल्स कहां से आएगा? एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ेगा सप्लाई इसको, करना पड़ेगा। या तो वो एनवायरनमेंट से लेगा, या फिर हमको हीट वगैरह ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या एनर्जी देना पड़ेगा उसको। Yes. This 80 kilojoules, जो उसको एनवायरनमेंट से या फिर बाहर से दिया गया है, this will be called as its Gibbs free energy. This will be called as Gibbs free energy. अभी delta G, change in Gibbs free energy, if this is greater than 0, that means your reaction is non-spontaneous. If it is less than 0, that means your reaction is spontaneous. मतलब बाहर से अपने को नेगेटिव एनर्जी लग रहा है, इतना उसके पास एनर्जी हो, खुद से खुद रिएक्शन हो सकता है। यस यस Sir, सर। equal to 0 है तो बहुत ही मतलब मैंने सुपरफिशियल लेवल पे आपको समझाया कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा? और अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 है मतलब तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में ही है वो। इक्विलिब्रियम। इक्वेशन, द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इट डज नॉट नीड एनी एनर्जी, ठीक है? यस। yes. नॉन स्पॉन्टेनियस, spontaneous, spontaneous, and this is equilibrium. ओके बच्चे? यस मैंने सर। बहुत छोटे में समझाया तुमको ये, और एलिंगन डायग्राम अभी नहीं बताऊंगा बेटा, बाद में बताऊंगा, ठीक है? यस सर। तुमने पूछा था ना एलिंगन डायग्राम। फील्ड स्प्लिटिंग बताओ ना, क्रिस्टल फील्ड एलिंगन स्प्लिटिंग। डायग्राम इज एक्चुअली ना, इट इज अ प्लॉट of Yes. the reactions in which 1 mole of a oxide of an element is formed. Simple. मतलब अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है 1 मोल का, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे 1 मोल चाहिए, मुझे जो भी एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको हाफ कर दूंगा। अगर मुझे Al2O3 का 1 मोल बनाना है, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एयर प्लस ऑक्सीजन, तो मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, मुझे सारे चेंजेस यहाँ करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा 3/2 और इसको कर दूंगा 2। Are you understanding? So Ellington diagram is nothing but the plot of such reactions in which 1 mole of the oxide is formed from free oxygen. Simple. बता दूंगा बाद में डिटेल में। Let us move on to questions. बच्चे सो गए रहेंगे अब तक तो। Guys, are you awake? No. You are not Yes. awake. This is pathetic.
किधर गया? हाँ इधर। मैं ऐसे पकड़ू कि तुम लोग के पास है? Yes, sir. सर है सर। मेरा हाथ रुक जाएगा। नहीं है? ये किसी के पास पीडीएफ नहीं है क्वेश्चंस का? है। अच्छा चलो शारन रीड द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, जोर से अच्छे से। The D block elements are called transition elements because The D block elements are called transition elements because they have partly filled n-1 D subshell. Their No, sir. properties are similar to S block elements. A D block elements का properties are similar to S block elements. No, no. Their no. properties are different from P block elements. Pathetic. No. Their properties are intermediate between the Yes. properties of S and P block elements. Yes. Or they have Yes. partly Yes. filled n-1 D subshell. कौन सा आएगा, A या D? सर डी आएगा। ये ऑप्शन रीजन नहीं है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए ए भी भी correct करेक्ट है। है। ए भी करेक्ट Yes. है। उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेनली क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो एस और पी के बीच में लाई करता है। बीच में लाई करता है। yes. यू रिमेम्बर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको Yes. बताया था ट्रांजिट मतलब Yes. पास करना Yes. फ्रॉम एस टू पी, यू आर Yes. गोइंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। Yes. Yes, Yes. sir. yes. ओके रीड द सेकंड क्वेश्चन तेजस। Which of the following statement is correct? इनमें से ए- कौन सा स्टेटमेंट सही है? मतलब 3 स्टेटमेंट्स गलत हैं और एक स्टेटमेंट सही है। अपने को सही स्टेटमेंट ढूंढना है। In the transition elements, the differentiating electron enters into n-2d subshell. Is it correct? No. No, No. it goes No. into n-1 n-1 -1 D. हाँ वो किस में जाता है? पेनल्टीमेट सेल में जाता है, अल्टीमेट सेल में नहीं जाता। ये n-2 क्या हो जाएगा? एंटी पेनल्टीमेट हो जाएगा। Penultimate हो जाएगा। Penultimate. Transition element include metals and non-metals. No. Transition Metal. element Metals. No, only metals. इसमें सिर्फ Metal. मेटल्स होता है ना बेटा? Metals है। Yes, अरे sir. हमने Yes. Yes, sir. हाँ There are 4 series of transition elements with 3D, 4D, 5D, 6D. Correct है। Yes. Yes. This is correct. Yes. 5F series of inner transition elements are called as lanthanoids. Actinoids बोलते हैं सर। उनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं, 4F को लैंथेनॉइड्स 4F बोलते हैं। lanthanoids. हमने अभी देखा था। Yes. Yes. तो सी इज द करेक्ट वन। ये बहुत इजी समझ रही। तुम लोग का बेसिक्स क्लियर हो जाए चैप्टर का, ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर देगा ये क्वेश्चंस तुम्हारे। शुभम रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. What is the general electronic configuration of the नालायक है। अरे थर्ड क्वेश्चन। Third question. third question? In the long form of the periodic table, the groups to which the elements of the D block belongs are 3 to 3 to 12। 12. B option 3 to 12. तेजस ने चिल्ला चिल्ला के बोला था 3 to 12, 3 to 12 Yes. है ना? Yes. Yes. what Yes. is the general electronic configuration of the elements belonging to the 3D transition series? 3D ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा गैस आएगा? Argon. Argon. कौन सा है? बी Argon. ऑप्शन है। आंसर इज बी। दिस इज आस्किंग यू द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी हमने देखा है बेटा, इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अक्षय रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अक्षय शिंदे। The general outer electronic configuration of zinc, cadmium, and mercury is. These elements are having completely filled D subshell Second and having option. 2 electrons in their s orbitals. Yes. तो पहली बात तो n-2 वाला ऑप्शन गलत है। n-1 वाला रहेगा, D10 रहेगा। D10 सबके अंदर है। S2 जिसमें है वो सिलेक्ट करो। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? B Second. option. B. B बी option. ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन नंबर बी। पहला वाला गलत क्यों है? बिकॉज उसमें S1 है। S1 ने सी वाला गलत क्यों है? बिकॉज उसमें n-2 है। और P डी भी वाला भरा गलत उसके क्यों है? अंदर। क्योंकि उसमें NP6 NP6 है। NP6 है तो अरे वो हो जाएगा P ब्लॉक एलिमेंट। क्रिप्टन हो जाएगा वो। वेरी गुड बेटा। अनिमेश रीड द 6th क्वेश्चन बेटा। अनिमेश नहीं है आज के लेक्चर में, कोई चेक करो जल्दी से। नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। केदार रीड द 6th क्वेश्चन। अरे केदार तो है, इतना तो पता है मुझे। सर 1 मिनट पीडीएफ खोल रहा हूँ। अरे खुला है नारे मतलब अभी वो। तक क्या कर रहा था फिर? अरे वो लोड नहीं हो रहे सर। ना अच्छा।
टाइटेनियम दिया है विद एटॉमिक नंबर 22, 3D सीरीज का बंदा है ये। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium? टाइटेनियम में कैसे भरेगा वो ये पूछ रहा है। 3s 3p 3d 4s 3s 3p 4s 3d 3s 4s 3p 3d 4। अरे आउटबॉक्स प्रिंसिपल का क्वेश्चन है बेटा ये। Yes, 3s 3p 4s 3p 3s 3p 4s and then 3d, right? 3d. Yes. Yes. ऑप्शन कौन सा है? B. बी। ये देखो AIPMT रीटेस्ट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सर 4 क्वेश्चन बी ऑप्शन ही आए हैं 4। ए भाई ये तुक्का मास्टर, ऐसा मत सीखा सबको, सब लोग फिर ऐसे ही करेंगे। ये रैंडम है, इसका कुछ ऐसा ये नहीं रहता कि सब बी आ रहा है, ठीक है। Which one of the following transition metals is expected to have the lowest first ionization enthalpy? बेटा देख कोबाल्ट है, इसको कैसे याद रखेंगे 3D सीरीज को, कोई बताएगा मुझे? सर सचिन कैडमियम तेंदुलकर, कैडमियम very crazy man। और आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। आगे क्या था? आयरन कोबाल्ट Iron, निकल कॉपर cobalt, जिंक। nickel. Three coaching कॉपर निकल कॉपर जिंक। cousin। अरे यार याद हो गया मेरे को सच में, मजाक नहीं करो, सच में मैंने बैट नहीं किया था, मेरे को सच में याद हो गया। वेरी गुड। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग टू निकल्स कजिन। अच्छा अब ये बोल रहा है which one of the following transition metals is expected to have the lowest first ionization enthalpy? First ionization enthalpy मतलब इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट से निकालना। इनमें से किसके, इसका पूछ रहा है ये, किधर गया? अपने पास है क्या? कोबाल्ट, अपने पास है क्रोमियम, अपने पास है मैंगनीज और अपने पास है आयरन। इनमें से किसके लास्ट शेल में 4s1 दिखता है कॉन्फ़िगरेशन में? क्रोमियम में दिखता है। Chromium. अच्छा क्रोमियम का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s1। 4s1. क्या है? 3d5 4s2। 3d5 4s2। आयरन का क्या है? 3d6 4s2। 3d6 4s2। 4s2. कोबाल्ट का क्या है? 3d7 4s2। 7 4s2. हाँ बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब पहला लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। अगर पेड इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो कम एनर्जी लगेगा। अगर हम चारों का लास्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कोबाल्ट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी किसका होगा? फर्स्ट वाला Chromium. आंसर क्या आएगा बेटा? सीआर। अभी बी ऑप्शन है। क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। कहाँ है? बी ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ठीक है। 8th क्वेश्चन। शुभम तू लोगों को गलत मत सिखा कि ऐसा बी आया तो बी भी करते जाने का। नहीं सर, ऐसा देख ऑब्जर्व कर रहा था, सब बी आया। मत करो ऑब्जर्व, ये दिस इज अ वेरी रॉन्ग टेक्निक टू लर्न बेटा। देख कभी कभार काम आता है बट यू कैन नॉट बी श्योर ना अबाउट इट ऑलवेज। सर एवरीबॉडी हैज नॉट गॉट कंप्लीट लाइक क्या बोलते हैं फैजल, ठीक है। So who is Faisal now? So Faisal was the person who used to sleep in all the lectures, literally all the lectures. Teachers used to call him to the first bench. He used to sleep there also. मतलब कोई भी लेक्चर हो, सुबह 7 बजे का लेक्चर हो, दोपहर के 1 बजे का लेक्चर हो, सुबह 11 बजे का लेक्चर हो, he used to sleep. God knows why. He used to always sleep. उसने तुक्का मार के CET पास किया था, उसको कितना अच्छा स्कोर आया और सब लोग हैरान थे कि फैजल लोग कैसे आ गए, because Faisal used to sleep. But I'm talking about a student with my friend who was with me in 11th and 12th standard. ठीक है, तो लेकिन ये सबकी किस्मत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, assertion Mn2+ compounds are more stable than Fe2+ compound towards oxidation state 2+3. Assertion देखो बेटा, Mn2+ and Fe2+ compounds towards oxidation state of +3. Reason क्या दिया देखो, third ionization enthalpy of Mn2+ is low because of its stable D5 configuration. Mn कुठे गेला? हाँ, Mn2+. करेक्ट है ये बेटा Mn2+ मतलब इसके अंदर से क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा? 3d5।
6. This is a stable configuration. Fe2 plus Stable, beta yes. 2 निकल जाएगा तो configuration क्या आएगा? 3d6. 3d6. ठीक है. अच्छा. Towards third ionization enthalpy of Mn2 plus is low because of its stable D5 configuration. Third ionization enthalpy किसका low होना चाहिए? इसका कि इसका? सर वो आयन का आयरन का आयरन का होना चाहिए, वो स्टेबल अटेंड करेगा, निकला अरे बेटा इलेक्ट्रॉन ये तो स्टेबल है तो इसको निकालने के लिए ज्यादा ज्यादा एनर्जी और पड़ेगा। energy Yes. कम रहेगा. ठीक है. अच्छा. Yes. Mn2 false plus है। compounds are more stable than Fe2 plus compounds towards oxidation state to their +3. मतलब Mn2 plus से Mn3 plus जा रहा है, Fe2 plus से Fe3 plus जा रहा है. कौन आसानी से जा सकता है? Fe. Fe. ऐसा सर, ये नहीं कि नहीं stable जाएगा, है। ये जाएगा, बट इसको ज्यादा एनर्जी लगेगा. Yes, इसको ज्यादा कम लगेगा। energy लगेगा। यस कम energy। जिसको कम एनर्जी लगेगा वो जल्दी से कन्वर्ट होकर स्टेबल हो जाएगा. Yes. यस इसको ज्यादा एनर्जी लगेगा तो इसको ये और ये इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ तो क्या हो जाएगा 3d4 और ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो क्या हो जाएगा 3d5. 3d5. तो कौन स्टेबल हो रहा है Fe. स्टेट में? Fe स्टेबल स्टेबल हो रहा है एज कंपेयर टू Mn2 प्लस. सर सर हाँ बोलो. नहीं समझा, नहीं Mn और समझा. Fa का ये कन्वर्जन कैसे करने का नहीं समझा। इसमें हाँ सर वो नहीं समझा। अरे बेटा मतलब Mn2 oxidation प्लस reduction। Mn2 प्लस मतलब 4s2 निकल गया, 4s2 निकल गया, क्या बचा मेरे पास 3d5 3d6. अभी Fe3 प्लस करने के लिए मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना पड़ेगा तब जाके Fe3 प्लस होगा. यहाँ पे क्या हुआ Fe2 प्लस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ Mn2 प्लस हुआ, ये क्या हो जाएगा Mn3 प्लस. Mn3 प्लस करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा बिकॉज 3d5 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3d6. स्टेबल, यस सर। Yes. So assertion is correct and reason is also correct. Reason false. Reason false है। Third ionization enthalpy of Mn2 is low because of it. No, it is high, beta. It is not low. Yes, sir. Reason is false. Reason is false. Yes, Assertion reason is false. correct. Reason is false. Assertion is correct. Yes. तो कौन सा ऑप्शन है? C option. D option. C की D? C. C आएगा. बेचारे शुभम का ये चेन टूट गया B वाले ऑप्शन का, है ना बेटा? Yes. अच्छा. Which of the following transition metals can have the highest oxidation state? मैंगनीज। By heart कर लो बेटा. Manganese. By heart कर लो. 7 है +7. इसका. Plus. +7 तक जाता Yes. है। +7 maximum. ये हमने देखा था, टेबल देखा था बेटा. यस सर। याद रखना. Sir. हर चीज के लिए अगर तुम सबका कॉन्फ़िगरेशन करते बैठोगे, लिखते बैठोगे तो फॉरगेट इट. एक ही Yes. क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेटा. The maximum oxidation states shown by vanadium, chromium and scandium are respectively. ए बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एस के इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलने के बाद फिर उसका आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. दिस इज व्हाट 3d1 4s2. और कौन सा पूछा है? वेनेडियम. दिस इज व्हाट 3d3 4s2. वेनेडियम है. क्रोमियम तो लिखा हुआ है 3d5 4s1 और स्कैंडियम इज 3d1 4s2. तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा? स्कैंडियम का +3. +3. वेनेडियम का मैक्सिमम क्या हो जाएगा? +4. क्रोमियम का मैक्सिमम क्या हो जाएगा? +6. तो ऑर्डर क्या है? वेनेडियम +5 क्रोमियम +6 स्कैंडियम. +5. वेनेडियम क्रोमियम स्कैंडियम मतलब B. +5 +6 B option. +3. कौन सा ऑप्शन है? बी। Option. B option. शुभम, are you happy? The option is B again. Yes. उससे पहले वाला भी B था। उससे पहले वाला C था. अच्छा नहीं B था. हाँ, B था. Just hold on. Now अभी ना आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, I do not want Sharon, Shaji, I do not want Sharon Varghese, I do not want Tejas, Shubham, Aditya Shinde, Akshay Shinde, sorry, ठीक है? I do not want these people to talk. अगर तुमको obviously तुमको आंसर पता है because these are easy questions. I do not want you to talk. जितना भी तुमको मन होगा आंसर देने का मुंह बंद रखेंगे हम, ठीक है बेटा? माइक ऑफ करके. हाँ, माइक ऑफ करके बैठो सब लोग. चलो अब आगे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आई वांट अदर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस और एल्स आई विल स्टॉप द लेक्चर एंड आई एम वेरी सीरियस रिगार्डिंग दिस.
I have much more better works to do. If I want to teach only these 3-4 people na, I'll take a separate lecture for them and I'll teach them for free. उनको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है. I know I'm boosting a lot because these students are actually putting in extra efforts. क्यों सिर्फ वही हमेशा आंसर दें? I want others to participate. I have seen hidden gems in this class. I have seen there are students in this class who know really much more things. Please share it with the class. I do not want answers from these 4-5 students. Am I clear with this? Piyush, Dokle वगैरह कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? They are regularly speaking students. I want others to speak now. हाँ, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 11th पे थे. The electronic configuration of a transition metal X in +2 oxidation state is this. What is the atomic number? Anyone apart from them? Sir, option D, 28. D option. D अपना option नाम 20. बताना. मेरे को ऑप्शन मत बताओ. ऑप्शन तो ठीक है, मेरे को पता है ऑप्शंस क्या है, आपको पता है ऑप्शंस क्या है, आपके बुक में आंसर शीट्स दिए. मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझा पा रहे हो मतलब आपको नहीं समझा है. अगर आपको नहीं समझा तो मुझसे पूछो. तेजस ने कैसे बोला मुझे नहीं समझा सर ये? अरे उसमें बोलने में क्या शर्म है? नहीं समझा, सीधा बिंदास बोलने का ना. ये देख बेटा, एक एलिमेंट है एक्स, उन्होंने नाम नहीं बताया, वो बोलते हैं उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद ना उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, आर्गन 3d8. ये +2 हुआ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ है उसमें से. वो पूछ रहा है व्हाट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के लिए मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा. Yes. ठीक है, आर्गन 3d8 4s2 2 ऐड किया मैंने. Yes. ठीक है. Yes. अच्छा, 8 + 2 10. आर्गन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स? 18. 18. 18. So 18 + 10 28. Is this right? Yes. What is the Yes. atomic number आएगा इसमें? 20. 28. 28, right? Did you understand कैसे किया ये? Yes. Yes. Yes, sir. Easy है ना? तुम लोग नाम बताओ बेटा, कौन बात कर रहा है? Amit. Angel. Sahil. Samir. अरे वाह वाह वाह, very good. See, you can Sir, speak. sir. You should speak. You should make Sir. your presence felt, and this is how you will succeed in your corporate life also. Try to understand this, बच्चे. अगर आपने काम किया है, अगर आपको कोई चीज आती है तो उसको दिखाना भी आना चाहिए, वरना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते. मैं सर आपको इसका 26 नहीं है. तू क्यों बोली रहे? तेरे को बोलने को मना किया था ना मैंने. सर मेरा डाउट पूछ. ठीक है, एक मिनट रुको, वरना आप सक्सीड नहीं हो पाते. दिस इज द कॉर्पोरेट रूल बेटा. यू हैव टू शो व्हाट यू नो. ऑलवेज रिमेंबर दैट. हाँ बच्चे बोलो, पूछो. सर 26 नहीं आएगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद का एटॉमिक नंबर पूछा है तो 26 आना. अब इसने कौन सा एटॉमिक नंबर पूछा है, वो दिक्कत है. एटॉमिक नंबर Yes. तो इसका एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट्स का होता है ना बेटा. ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ी एटॉमिक नंबर हम गिनेंगे. एटॉमिक स्टेट में तो वो आयन बन चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट में. +2 हुआ है उसका दिया है उसने. +2 दिया है ना Yes. ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर वो 2 निकला तो 3d8 ही आएगा ना. यस सर, क्या बोल रहे तो 26 आना चाहिए. The electronic Oxidation में configuration of a 2 हो गए transition ना metal. सर. Listen. The electronic configuration of transition metal X in +2 oxidation state is this. What is its atomic number? Atomic number of 28 the है. element पूछा है उसने. देखना, what is its atomic number? X का atomic number क्या है? तो Yeah. atomic number तो +2 करने के बाद 28 ही आएगा ना बेटा. यस यस. Sharon, am I Okay. clear? या. सर. हाँ बेटा बोल. सर अभी वो x का निकाला ना 28, उसका हाँ उसका वो x का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? AR 3d8 4s2. हाँ तो सर वो वाला डाउट था मेरे को कि उसके नीचे वाला जो पैलेडियम रहेगा ना उसके अंदर वो 3d नहीं सॉरी 4d8 5s2 आना चाहिए था ना, बट वो 4d10 दिखा रहा था. ऐसा है. तेजस, तुम्हारा आवाज बहुत कटा और मुझे एंड में खत्म हो गया आवाज. तो मुझे सुनाई कुछ नहीं आया. Freeze हो फ्रीज गया. हुआ स्क्रीन सर. फ्रीज हो गया. तेजस, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बेटा क्लियरली. मैं सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया. मेरे स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ, मैं हूँ यहाँ हाँ पे. सर अभी हेलो. वो फास्ट फॉरवर्ड हो गया, अभी बराबर हुआ. अरे बॉस, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? मैं अभी आ रहा है क्या आपका आवाज टूट रहा था तेजस. सर मेरा वॉइस network अभी ब्रेक हो आपका रहा है. आवाज ब्रेक हो. Sharon, your voice is breaking. Yeah. हेलो सर, नेट तो चल रहा है बरोबर. अभी आ रहा है सर.
नेट अभी चल आ रहा है रहा है, बरोबर? मेरा आवाज आ रहा है? सर यस Just बोल हाँ बेटा, सर, वो बोल अभी तेजस। वो एक्स कशोर का बख्शी। कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d10 आएगा, तो उसके नीचे वाला जो एलिमेंट दिया ना पीरियोडिक, सर स्क्रीन फुल स्लो मोशन में 4s2 3d10 फिर से बोलो, फिर से बोलो, तुम लोग का आवाज ब्रेक हो रहा है बच्चों। गाइस कैन यू हियर मी? Yes. Yes, sir. व्हाई कांट आई हियर यू क्लियरली देन? मतलब तुम लोग का नेट का प्रॉब्लम है? स्क्रीन फ्रीज हुआ है। अरे ठीक है ना, नेट का इशू है, ठीक है, आराम करो। सर मैं मानता हूँ मेरा नेट का इश्यू है। अरे वेरी गुड, चलो वेरी गुड। हाँ बोलो, अब बोलो, अब आवाज आ रहा है, बोलो। सर वो एक्स मेटल है ना, उसके अंदर वो हाँ 4s2 3d8 लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ हाँ, तो वो नीचे पैलेडियम उसका नीचे जो लाई करते हैं ना, हाँ। उसका कॉन्फ़िगरेशन 4d8 5s2 होना चाहिए था, 4d8 8 5s2। हाँ। हाँ, बट वो पीरियोडिक टेबल में 4d10 दिया है, ऐसा क्यों? 4d10 दिया है हाँ बिकॉज सर, ये और वो उसके पहले वाला भी जो एलिमेंट्स है ना, उसके अंदर भी 4s1 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 ऐसा 5 एलिमेंट तक भरा है पूरा, और उसके नीचे भी वैसे ही किया है। ठीक वो है, डाउट पूछ रहा था सर। ठीक है, समझ गया मैं सर, तुम्हारा आप बता डाउट। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, ठीक है। लेट मी डू अ लिटिल रिसर्च ऑन दिस। आई नो द आंसर्स फॉर दिस, मतलब आई न्यू द आंसर्स फॉर दिस। आई विल रिसर्च सर वो ऑन दिस आपने एंड भेजा था ना, आपने बोला था कि वो लैंथर्न और एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन, बाद में वो नहीं, पर एनोमलस बिहेवियर इस दिखा पे रहा वो था। असर नहीं आएगा लैंथर्न का, इसका एक्टिनोड का, बट स्टिल लेट मी चेक। एक बार मुझे फिर से दोबारा भेज देना बस, ठीक है। यस सर। सर अच्छा, मुझे नहीं पता, मेरे को भी नहीं समझा ये वाला। हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं सर दोनों मेरे को को भी बताऊंगा, नहीं समझ। तीनों को Yes, बताऊंगा। और कोई समझा? जब बेटा इन तीनों को नहीं समझा तो फिर किसी को नहीं समझा होगा। अक्षय कैन बी एन एक्सेप्शन, बट अक्षय को क्वेश्चन ही नहीं समझा, ये पूछ कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैच द कंपाउंड टू द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंग मेटल। ए बेटा, दिस इज +3, दिस इज +4, दिस इज -4 +6 6 दिस इज +2 +2 मैंने कैसे किया, इतनी फटाफट कैसे निकाल दिया? हाइड्रोजन, ए बेटा 11 स्टैंडर्ड -1, ऑक्सीजन -2, सल्फेट -2। -2 ये मुझे 11 से अगर याद रहेगा तो मैं इनका डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ। क्लोरीन का एक का -1 होता है, यहाँ पे 3 है तो -3 हो जाएगा, एंड दिस प्लस दिस शुड बी 0, तो ये क्या हो जाएगा +3। याद है? यस yes क्रोमियम का +3, मैंगनीज का +4, क्रोमियम का +6, आयरन का +2। कौन सा ऑप्शन है? डी डी ऑप्शन। D option चलो बहुत बेहतर है, डी ऑप्शन आया, ठीक है। अच्छा, 13th question. Today is 13th August. On 13th August at 8:05 we are doing the 13th question. So 8:05 8 + 5 भी 13 होता है। 8 + 5 भी 13 होता है. This is the dangerous question beta, because today is Friday. Today is 13th August. 8 + 5 is 13 and we are doing the 13th question. Oh my God, Satan is on full fire today. For the first row transition metals, the E0 values, reduction potential values, ये डिस्कस किया था बीच में एक बार पढ़ाते वक्त। The reduction potentials values are given. M2 मेटल से M2+ से M बन रहा है, मतलब M2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो M हो जाएगा ना? M हो जाएगा ये। हाँ, तो इसका वैल्यूज दिया हुआ है। रिमेंबर बेटा, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा वो स्टेबल। सर क्यों स्टेबल होगा? रिपीट करो। ये देखो, इसको इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दैट कि ये ऐसे दिया हुआ होगा आपको M2+ M, मतलब M2+ से M बनने के लिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ना बेटा? इसलिए रिडक्शन होता है। यस इसके वक्त कितना एनर्जी लूज होता है? किसी का -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ठीक है। ये बेटा इसका मतलब क्या हो रहा है? माइनस का मतलब क्या हो रहा है? उसको उतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो इजीली ऐड हो रहा है कि डिफिकल्टी से ऐड हो रहा है? इजीली से ऐड हो रहा है, माइनस है ना।
नहीं Correct. समझा सर नहीं सर समझा। माइनस मतलब नहीं। एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ना? माइनस मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्लस मतलब एनर्जी देना पड़ रहा है। सर वो ठीक है? माइनस मतलब फिर- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, ऐसा रहता है ना? यस, माइनस मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्लस मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, नहीं माइनस मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज वो खुद रिड्यूस हो रहा है, एंड प्लस मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग उल्टा एजेंट। दिया है। सर मेरे को नहीं समझ सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। होल्ड नहीं ऑन समझा। फिर से बताओ। बेटा 13 अगस्त को 13 क्वेश्चन 8-5 को करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगा बिकॉज इट सर 8 इज 7 हो गया। 8-7 हुआ। हैव यू हर्ड ऑफ फ्राइडे द 13th? No, Nobody has heard of Friday the 13th. no, sir. नो सर नो। You guys should watch more Hollywood movies, man. No. Kalyan students are crazy, man. They don't watch Hollywood movies. They watch only for one thing. Yes. Tejas and others. M2 plus 2 electrons is giving me M. M. ये Yes. समझा? Yes, Yes, sir. Yes, Yes. yes, yes. sir. The oxidation reaction or a reduction reaction? Reduction. Reduction. Reduction हो रहा है, किसका reduction हो रहा है? M2 plus M का? M2 का मतलब M2 plus is a good oxidizing agent Oxidizing agent. यस yes, because Yes. ये खुद का रिडक्शन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज दूसरे कर का रहा है, ऑक्सीडाइज है। यस Yes. Yes. M is a reducing it. reduce. Reducing agent. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके दूसरे को सॉरी वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है खुद को ऑक्सीडाइज करके, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना बेटा। Yes. Yes. ये Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर है 11th स्टैंडर्ड से? Yes. Yes. Yes, अब Yes. आपको क्या दिए हैं? आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं, E0 वैल्यू दिए हैं, किस कहां से कहां जाने के लिए? यहां से यहां आने के लिए, M2 प्लस से M बनने के लिए। तो मतलब यहाँ पे ये दिस रिएक्शन इज व्हाट हैपनिंग, रिडक्शन इज हैपनिंग। वैनेडियम का क्या है? -1.18, क्रोमियम का क्या है? -0.90, मैंगनीज का क्या है? -1.18। सेम कैसे होगा? हाँ, आयरन का क्या है? -0.44, कोबाल्ट का क्या है? -0.28, आता निकलचा काय आहे? -0.25 आणि कॉपरचा किती आहे? दिख रहा है बोर्ड की दूसरा मार्कर दूं? दूसरा मार्कर. सर नहीं दिख रहा है आगे। मैं तुमको बोला मेरे को पैसे दो बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है इनकम करने के लिए, तुम लोग पैसा देते नहीं हो मेरे को। कॉपर ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन कॉपर का कितना है? Yes. प्लस Plus 0. that's 0.34 0.24 माइनस 0.25। हाँ, what is this minus and plus sign indicating? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज वगैरह तुमने पढ़ा था पहले भी, अभी 12th में भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब ये अभी look at these values, can you see any trend in the values or they are just ऊपर नीचे? नेगेटिव से पॉजिटिव। negative. नेगेटिव से पॉजिटिव होते जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है. ये increase हो increase हो रहा है, ये Yes. यस हो रहा यस है, यस। but बीच There बीच is में no रेगुलरिटी आ trend, रहा it is है। all upside down. There is no Regularity आ रहा है। definite- एक जन बोलना भाई, there is no definite trend। देखो ना haphazard manners है, यहाँ पे देखो ये दोनों Yes. सेम है, ये अलग अलग है, ये अलग है, अचानक से पॉजिटिव हो रहा है। Is there a regular trend in this? No. No, No. ये इश्यूज क्यों आता है? ये इश्यूज क्यों आता है? मतलब मेरे एलिमेंट को आयन बनना है तो उसके अंदर से मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। अब उसके अंदर से sir. इलेक्ट्रॉन्स निकालना या डालने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कहीं पे 3d5 है, कहीं पे 3d10 है, कहीं पे 3d2 है, Yes. Yes. अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। These configurations are stable, 3d0 भी स्टेबल होता है ना बेटा? एक भी Yes. स्टेबल ही रहेगा ना वो। तो Yes. these configurations are Yes. stable, these are unstable, Yes. these Yes, are sir. unstable, है ना? तो अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो रहा है? अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था Mn2+ और Fe3+, इन दोनों में से किसको इजीली आयनाइज कर सकते हैं हम लोग? Fe3+। Fe को। Fe3+. क्यों बेटा? बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस है। अभी इनका प्रॉब्लम Yes. क्या है पता है? इनका फर्स्ट, इनका सेकंड और इनका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का एडिशन अलग अलग आता है बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी वजह से ये वैल्यूज डिफर होता है। The trend in these values is irregular because of the irregular variation in the first,
in the second, in the sum of the first, second ionization enthalpy and sum of the enthalpies of densities and sublimation enthalpies. Sir. कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा इसमें 13 क्वेश्चन में? सी हाँ, सर वो सम सब्लिमेशन क्या होता है? Sublimation enthalpy. सब्लिमेशन नहीं पता बेटा, No, सब्लिमेशन नहीं पता. Sublimation enthalpy. सब्लिमेशन पता है, पता है solid. Sublimation to convert from solid to gas. सॉलिड टू हाँ, वो डायरेक्टली Gas. गैस. सर वो sublimation These are enthalpy. metals, इनको सब्लिमेट करने के लिए कितना ज्यादा एनर्जी लगेगा? Yes. बट आयंस को सब्लिमेट करने को ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा. नहीं लगता है. क्यों? अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एनर्जी दे करके तो उसका आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो गैस जैसा बन के निकल जाएगा. निकल जाएगा. यस Yes. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सी. Option. See. ठीक है. सर ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है और सिर्फ एमएन एक्सेप्शन तो नहीं, वो डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होता बेटा. इट इज इररेगुलर अगेन थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, थ्रू आउट दिस क्या बोलते हैं सीरीज. इररेगुलर रहता है बेटा. कहीं पे 3d5 आ रहा है, कहीं पे 3d4 आ रहा है, और कहीं पे 4s1 है, कहीं पे 4s2 है, तो इट इज गोइंग टू बी इररेगुलर. ज्यादा करके इरेगुलरिटीज ये दिखा था, फर्स्ट वाला दिखा था ना आयनाइजेशन एंथैल्पी. हाँ यस, इररेगुलरिटी रहेगा ना इसमें, लेकिन हाँ यस सर, यस सर. शायद am I clear? यस हेलो. यस गर्मी लग. So Friday the 13th question at 8:05 was difficult. 8:13 पे So खत्म this हुआ. proves that 13 is an unlucky number on Friday. Yes. Which of the following has highest ionic radii? Highest Fe2. ionic radii. CO2 plus, Mn2 plus, Fe2 plus, Ni2 plus. ए बेटा, सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. आयनिक रेडिया हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्या बोलते हैं प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स तो सबका फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता. तो अभी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है. इसका एटॉमिक नंबर क्या है कोबाल्ट का? 27. 27. 4s2 3d7 है. 27. इसके बाद क्या आता है? गिविंग आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, Iron, जिंक. Iron, cobalt, nickel, zinc. 26, 27, 28, 29, 29, 30. 30. कोबाल्ट का कितना है? 27. 27. मैंगनीज का कितना है? 25. Punch. आयरन का कितना है? आयरन 26. 26. और निकल का कितना है? 28. This is their number of, this is the number of protons each one is having. अभी जिसके पास सबसे कम प्रोटॉन है उसका क्या बोलते हैं एटॉमिक साइज ज्यादा रहना चाहिए, राइट? न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. Yes. यस सबके अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है. सबके अंदर दो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है. अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 25. 25 23 24, 26. सर Mn2 प्लस का छोटा है. 27 protons are attracting 25 electrons. 25 protons are attracting 23. 26 are attracting 24. 28 are attracting 26. सर 23 रहेगा. 23 Mn2 प्लस. Yes, sir. Mn2 plus. तो सबसे बड़ा रेडियस किसका आना चाहिए? बड़ा रेडियस मतलब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, रिपल्शन हो रहा है. Mn2 प्लस. Mn2 plus. Mn2 plus. Why should it be Mn2 plus? सबके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है ना. सर वहाँ पर आयोनिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. decreases in reading. Ionic radii is inversely proportional to एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा number. एटॉमिक नंबर. atomic number. Number. यस यस एटॉमिक. Atomic number. तो एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम होगा उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. ज्यादा. तो कौन सा आंसर आना चाहिए अपना? Mn plus. Mn2 plus. plus. Option B.
पेपर कौन सा कुछ सर इसको ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं ना कि पीरियड में लाई कर रहा है तो डायरेक्ट mn2 प्लस हाँ इसको ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं ना Yes, कि sir, direct. mn2 प्लस सबसे बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है। बिल्कुल। When concentrated HCl is added to aqueous CuSO4, copper sulfate aqueous plus concentrated HCl solution. The color of the solution changes from dash to due to the formation of dash. Copper sulfate plus HCl. यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपने को किसी को आइडिया है कुछ? CuCl4 CuCl 4 and H2SO4 H2. H2SO4. CuCl4 plus H2SO4 ऐसे मिलेगा yes तो ये 2 हो जाएगा तो CuCl2 आएगा सर उधर ये 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ ये 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। Keep on doing this. You balance it afterwards. yes अच्छा अभी अगर आप देखें यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बेटा? कॉपर का हो रहा है सर। कॉपर का कॉपर यहाँ पे क्या है +2 यहाँ पे कितना है +4 +4 कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यू रिमेम्बर मैंने वो कलर के लिए आपको दिया था याद करने के लिए? Yes, sir, वो ट्रायंगल वाला। Yes, sir, हाँ। नहीं वो ट्रायंगल वाला तो ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको शॉर्टकट दिया था कलर याद करने के लिए। कलर Cu+4 का कुछ होता है Cu2+, किसी ने लिखा है वो? मेरे पास नहीं है लिखा हुआ। यस सर। हाँ तो बताओ इसका कलर क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए, ब्लू टू ग्रीन होना चाहिए। देख बेटा ओरिजिनल कॉपर सल्फेट इज ब्लू, तो पहला वाला तो ब्लू होना चाहिए जो सब ऑप्शन में है, जो सब ऑप्शन में है। कलरलेस नहीं होगा बिकॉज इट इज डी ब्लॉक का आयन, ठीक है? कलरलेस नहीं होगा, कलरलेस होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा कलरलेस नहीं होगा तो सी ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन इज आइदर फ्रॉम ए बी और डी, या तो वो ग्रीन होगा, येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। अब देखो बेटा ग्रीन के भी 2 ऑप्शंस है तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि ग्रीन आंसर होना, तो येलो भी डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब CuCl4 बनेगा तो ग्रीन होगा कि CuCl2 बनेगा तो ग्रीन होगा? CuCl4 CuCl4 2 माइनस। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए फिर? C. डी है D ऑप्शन है। डी कहां से हो गया? D कलरलेस है। डी ऑप्शन हाँ तो डी बोला ना, सी तो कलरलेस है ना। yes Yes, D सर ऑप्शन। डी ऑप्शन दिया है। Patch. The color of potassium permanganate is due to JEE Mains 2015. D2 transition। M to L charge transfer L to transition, M. D to D transition, L to M charge L to transfer M transition, L to M or charge pi to pi transfer star transition. transition. Sigma sorry, not pi नहीं हो sigma। ये बोले L to M L to M charge लिगेंड टू M आ रहा है, लिगेंड टू मेटल। ऑक्सीजन जो है ना बेटा उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ आता है ना, मैंने बताया था आपको। yes Yes, sir. इसका आंसर क्या आना चाहिए? ligand to D M ऑप्शन। लिगेंड टू M, लिगेंड टू M। M. ये बेटा मेटल से कभी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते डोनेट करेगा? यस करेगा, बिल्कुल कर सकता है। Yes. बट यहाँ पे अगर आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओ तो कितना आता है? सर +7 आएगा। 7 +7 में उसके पास डी में +7 इलेक्ट्रॉन होता है? नो नो नहीं No, होता। no. नहीं होता है। होता है। तो ऑब्वियसली लोन पेयर जिसके पास होगा वहीं से आना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। यस yes So it is going to be L to M L charge to M. transition. And कभी भी L की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं जाएगा? सर वो उसके पास लोन पेयर पहले से रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पहले It से is रहते हैं। either लेकिन a acceptor ion के or ऊपर it is a unstable neutral नहीं molecule होगा। having lone pair. तो उसके पास Yes. इलेक्ट्रॉन्स है, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन्स और अनस्टेबल हो जाएगा वो। और अनस्टेबल हो जाएगा। Very good. Match the metal ions given in column 1 with the spin magnetic moment of the ions given in column 2.
स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ n N into plus 2. n plus 2, where n is the number of unpaired Unpaired electrons. electrons. Where n is the number of unpaired electrons. कौन कौन सा आयन दिया है बेटा अपने को? Cobalt. CO3 plus CR3 CO3 plus minus 3 plus Cr3 minus Fe3 Fe3 minus minus. सर 3 plus है वो Ni2 Plus plus है। plus 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 है। माइनस नहीं होगा बेटा, प्लस होगा मेटल से। अभी बेटा CO3 plus कोबाल्ट 3 plus कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन ये क्या है? D1S2 4 1 वो सब नहीं लिख रहा हूं मैं। D2S2 D3S3 है ना? 3 नहीं 2 D1 D2 D3, am I right? D5S1 D5S2 D5S2 sheesh D7S2, am I right guys? Yes. Yes. कोबाल्ट का क्या आ रहा है? D7S2 3 प्लस है, 3 गया मतलब कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? ये देख 1 2 3 4 5 6 7 और इसका 2, तो ये 2 गया और क्या बोलते हैं इसका 1 गया। ये जो पेयरिंग वाला है पहले वो निकलेगा, Yes. वो गया। तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना? 4. अनपेड Yes. इलेक्ट्रॉन ओवर हियर 4 अनपेड। Cr3 plus 1 गया और 2 गया, तो कितना बचेगा? 3 है ना? Cr3 plus में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना? D5S1 है, 1 गया यहाँ से, 2 यहाँ से गया, तो कितना बचा? 3 बचा ना? 3 3. Yes. root of 15. आयरन Fe3 plus 2 गया 1 गया 6 है। 5 आएगा। Ni2 plus Da(S2) 2 गया 1 गया, क्या हो जाएगा? D7 हो जाएगा। 7 बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 3 आएगा इसमें भी, है ना? Yes. नहीं इसमें 3 नहीं। आएगा। सर, नहीं, 2 आएगा दो इसमें। आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा, Two, 2 two. आएगा, Two. सॉरी 2 आएगा। अब मैंने आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताए, कैसे किया पता है ना? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख करके माइनस करके इनको इस फॉर्मूले में डालो और आंसर्स बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए। कम ऑन। सर और रूट 24 है। आपको रूट सॉल्व भी नहीं करना है, बस डायरेक्टली रूट में ही आंसर ढूंढ के निकलना है बेटा। यस। रूट 24 है, रूट 15। हाँ रूट Sir, root 24 रूट 24, root 15 15, root कितना आया? 35, रूट A option. 24 रूट 24 A रूट ऑप्शन है A रूट root 15, 15 15 रूट 35, 35 35 रूट 8 8 तो जो भी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है करेक्ट? A option. सर सिर्फ फर्स्ट 2 ढूंढने से पहले आंसर 2 ही करने का था। ये मेरा Yes. ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला ऑप्शन ये आया है ना शुभम? Yes. मुझे Yeah. कौन सा Yes, ऑप्शन sir. आ रहा है? ये आया। हाँ उससे बेटा। पहले DD आ रहा था, अभी A आया। Which of the following is diamagnetic? Diamagnetic मतलब all paired electrons. और Yes, paired. कौन कौन सा है? Ti4 plus सर Yes. CO2 कौन है? आएगा। plus Cu3 CO2 plus plus आएगा। Cu2 plus Mn2 plus सर CO2 plus आएगा क्योंकि यहाँ पर पेड हो जाएंगे। Ti4 plus आएगा। Ti4 प्लस आएगा सर, Ti4 Ti4 प्लस plus. आएगा। Ti में से अगर ये Argon. दोनों ये चार Yes. इलेक्ट्रॉन निकलेंगे Argon बन जाएगा। Argon बन जाएगा। आंसर Yes. Ti4 plus इज द आंसर। कैसे आया पता है ना? सब पेड इलेक्ट्रॉन Yes. हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। सर CO2 Yes, plus में sir. होगा ना सर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं सर। इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें ना वो। अरे तो उसमें अनपेड रहेगा ना, लेकिन yes 9 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ये। शुभम ये सर समझा। इसमें अनपेड रहेगा शुभम। ये सर समझा। शुभम कैन एनीबडी हियर Sir, शुभम? आई कैन नॉट हियर Screen शुभम। freeze. हेलो Screen freeze. Screen freeze है sir. शुभम ये सर सर आपका स्क्रीन भाई फ्रीज तुम हो लोग गया का था। आवाज नहीं आ रहा है। सर कोई बोर्ड शुभम को बोलेगा कि दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज़ इसमें अनपेड रहेगा। ठीक है ये सर पता है।
अच्छा पूछा क्यों फिर नालायक। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 is equal to under root of n into n plus 2 is given by dash atomic number Ni 28, Ti 22, Cr। ये 2.84 किसका आएगा? √3 के आसपास है, √3 के n का आसपास। वैल्यू ढूंढो। अच्छा 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2 आता है। 2 आता है। तो 2.84 किसका सर स्क्वायर रूट निकल होगा? Ni2+ आएगा, Ni2+ आ रहा है। अरे रुक ना भाई, थोड़ा लॉजिक इसका समझते हैं। ठीक है, अगर 2.84 है तो मतलब 4 से बड़ा है ये वाला अंदर का नंबर। यस 4 से बड़ा। अच्छा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5? 25 20 square ऑफ 5 आएगा, स्क्वायर ऑफ 5। square of व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6? स्क्वायर रूट ऑफ 7? स्क्वायर रूट ऑफ 8? ये बेटा यहाँ तक जाने का जरूरत है क्या? 2.84 है तो मतलब इनके बीच में होगा। यहाँ पे कहीं यस 6 और 5 के बीच। 6 और 5 के बीच में होगा। यस √8 आ रहा है, √8। √8 आ रहा है क्या सर। होना चाहिए उसको 6 और 5 रखने के लिए? सर √8 के आसपास आ रहा है तो 4 है। सर √8 यस 4 आएगा। 2.84 इस कितना? √8 √8 के आसपास का वैल्यू है। यस √8 मतलब 8 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो सकता है रे? सर 2 + 2 × 2 2 आना चाहिए। सर डायरेक्ट वो ऑप्शंस का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करके मैच करने का ना डायरेक्ट। एब्सोल्युटली वो भी कर सकते हो आप। Ni2+, Ti2+, Ni2+ का पहला ऑप्शन आ रहा है सर। O2+। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ढूंढो और उसका रूट ढूंढ लो। किसका रूट 2.84 के आसपास आएगा? दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। सर Ni बाजू में लिखा है सर, Ni2 बोर्ड के बाजू में Ni2+ का √8 लिखा है। Oh my God! Look at over here. √8, 2.84. आंसर क्या आएगा इसका? Ni2+। Very good. सर अभी ए से शुरू हो रहा है। Which of the following statements about the interstitial compounds is incorrect? गलत है। Interstitial compounds have lower densities than the pure metal. Correct. यस Transition metallic carbides are chemically reactive. No, they are not. सेम रहते हैं। Carbides are not reactive. This is wrong. Transition metal hydrides are powerful reducing agents. Yes. Interstitial compounds have higher melting points than pure metal. Yes. तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सर बी सी बताओ ना एक बार। केमिकली इनर्ट सर, रहते हैं। सी वाला ऑप्शन नंबर बी बताओ गलत है। सर। सी वाला एक्सप्लेन करो एक बार। कौन सा वाला? सी वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सी। मेटल हाइड्राइड्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। In transition metal hydrides are powerful reducing agents. ए बेटा metal hydrides हाइड्रोजन दे सकता है ना किसी को, वो खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरे का रिडक्शन करेगा ना। हाँ यस सर। ठीक है, चलो अभी लेट अस कीप इट अ राउंड फिगर। 20 क्वेश्चंस हमने आज किए। लेट अस कंटिन्यू टुमारो देन। ठीक है? नो, you know. Who said no? Yes, sir.